مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع پونچھ کے شہر خاص میں وارڈ نمبر 5 میں شیر کشمیر پل کے قریب واقع جامعۃ الصالحات ٹرسٹ کے زیر انتظام بچیوں کے لیے تعمیر مدرسہ جس میں قیام و طعام کا بندوبست ہے اور ضلع بھر سے 90 سے زائد طالبات زیر تعلیم ہیں، جس کی تیسری منزل کا چھت ڈالنے کے لیے عوام سے حافظ خلیل احمد برکاتی ناظم اعلیٰ جامعہ الصالحات، لالا منظور احمد لون چیئرمین جامعۃ الصالحات و ریٹائرڈ زونل ایجوکیشن آفیسر عبد المجید نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مدرسے کا تعاون کرے۔ انہوں نے کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ اپنی بچیوں کو ہم دینی تعلیم سے آراستہ کریں اور اس کے لیے ہر فرد کے تعاون کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس مدرسے کی تیسری منزل پر چھت ڈالنا وقت کی اہم ضرورت ہے، جس کے لیے عوام سے انہوں نے خصوصی تعاون کی اپیل کرتے ہوئے دعوت عام دیتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ جمعرات کے روز مدرسے کی منزل کے تیسرے چھت ڈالنے میں اپنا تعاون پیش کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مرد کی تعلیم صرف ایک فرد کی تعلیم تک محدود ہوتی ہے، مگر بچیوں کی تعلیم پورے معاشرے کو تعلیم یافتہ بناتی ہے۔ آئیے دیکھیے ضمن میں ہماری یہ خاص و مفصل رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو میری طرف سے اور لالا جی کی طرف سے، لالا منظور صاحب کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مدرسہ جو ہے اس کا سنگ بنیاد جو ہے لالا منظور صاحب کے زیر قیادت عرصہ 2 سال قبل یہاں پر ہوا تھا، جس میں مختلف دیہات سے بچیاں یہاں پر دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور پڑھائی میں لکھائی میں جہاں تک ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ علماء حضرات مختلف ٹائم میں یہاں پر آئے اور انہوں نے بچیوں کا امتحان جو ہے لیا، تو پتہ چلا کہ یہ بچیاں جو ہیں اپنی تعلیم میں بہت آگے جا رہی ہیں۔ اس سلسلہ میں یہاں پر چونکہ جگہ جو تھی لالا منظور صاحب نے یہاں پر وقف کی تھی اس مدرسہ کے لیے، اب جو تعمیر ہے اس میں اکوموڈیشن جو تھی وہ بہت کم تھی، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ 2 چھت سے ہماری جو بچیوں کا جو اکوموڈیشن ہے وہ برابر نہیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ تیسری چھت کا جو تعمیر کر کے اس کو لینٹر جو ہے ڈالا جائے۔ انہوں نے کافی عرصہ ہوا ہے یہاں پر، انہوں نے یہ کام جو ہے یہاں پر مدرسے کی تعمیر کا شروع کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس مقام پر پہنچایا ہے۔ یہ تیسرے چھت کا جو لینٹر ہے وہ پرسوں بروز ویروار یہاں پر ڈالا جا رہا ہے۔ تو میں تمام ناظرین کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور ہر طرح کی امداد جو ہے مدرسے کے ساتھ تعاون رکھیں، اور تاکہ آنے والے وقت میں یہ مدرسہ جو ہے مزید پھلے پھولے، اور جو دیہات کی بیٹیاں یہاں پر تعلیم دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، تاکہ یہ بچیاں جو ہیں یہاں پر فارغ التحصیل ہو کر اپنے علاقہ جات میں جا کر دین کی روشنی سے باقی بچیوں کو وہ سرفراز کرا سکیں۔ میں پھر ایک بار تمام ناظرین سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر پرسوں بروز جمعرات تشریف لائیں، اور جس طرح سے بھی ہو سکے وہ اپنی جو امداد جو بھی کر سکتے ہیں مدرسے کے لیے وہ یہاں پر کریں، اور مدرسے کو ہر وقت اپنے دل میں بٹھا کر رکھیں، تاکہ مدرسہ جو چلتا ہے ہمیشہ کے لیے یہ چندے کی نسبت سے ہی چلتا ہے، اس میں کوئی ذاتی معقول آمدن ہوتی نہیں ہے، یہ ناظرین کے ہی صدقے میں یہ کام ہوتا ہے۔ میں تمام ناظرین سے پھر ایک دفعہ گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر بڑھ چڑھ کر آئیں، تشریف لائیں، اور بروز ویروار پرسوں یہاں پر جو لینٹر ہے اس میں شمولیت کریں، اور اپنا جو ثواب ہے ثواب میں اپنا نام لکھائیں۔ میں ان الفاظ سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی آدمی کو، کسی بھی شخصیات کو کار خیر کے لیے، نیکی کے کاموں کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے
लाला मंजूर साहब को एक तालीमी अदारा कायम करने की तौफीक अता फरमाई, जिस तालीमी अदारे में तालिबात गर्ल स्टूडेंट जो हैं वो तालीम हासिल कर रही हैं, जिनका ताल्लुक़ पसमानदा घरानों से है, डेस्टिट्यूट फैमिली से है, पुअर फैमिली से है, फार फ्लंग एरिया से है, वो तालिबात भी यहाँ तालीम हासिल कर रही हैं। इनका मेन फोकस ये है कि दीनी व दुनियावी दोनों तालीम जो है साथ साथ तालिबात जो है वो हासिल करें। अभी मदरसा हज़ा अपने इब्तदाई मराहल से गुज़र रहा है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के फजल व करम से इस कलील अरसा में मदरसा हज़ा इस अदारा हज़ा ने जितनी तरक्की की है वो बायस इफ्तिखार है, बायस रश्क है और बायस फ़ख्र भी है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इनको तौफीक दी। ये दिन रात करके मेहनत कर रहे हैं इस अदारे को चलाने में, और फिर इनके जो अहबाब हैं, जो इनके जान पहचाने वाले हैं, जो इनके साथ दस्ते तामन कर रहे हैं, दामे दिरमे कदमे सुखने, तो वो इस कार खैर में अपना हिस्सा जो है वो अदा कर रहे हैं। तो ये कोई भी इदारा हो, करने वाली अदारों को चलाने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला कुछ शख्सियात को, कुछ अफराद को ये तौफीक फरमाता है कि वो ऐसे अदारों की खिदमत कर सकें। तो लिहाजा यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ जो मालिमात हैं, या जो जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, बड़ी मेहनत से, बड़ी तगोदो से और बड़ी जानफशानी से तालिबात को तालीम दे रहे हैं और अपनी ड्यूटी जो है, अपने फ़राइज़ जो है वो इंजाम दे रहे हैं। नहायत ही काबिल तरीन मालिमात यहाँ इन्होंने तैनात किए हुए हैं और बाकी जितने भी अफराद हैं दौड़ धूप करते हैं। दूसरी इस बात का तज़किरा भी यहाँ करते चलें कि ये रेजिडेंशियल स्कूल है, रेजिडेंशियल अदारा है, एक ये रहायशी जो है ये अदारा है। यहाँ बच्चों को खाना पीना वो भी मुहैया किया जाता है और दीनी व दुनियावी दोनों तालीमों की तरफ इनका फोकस है, इनकी तवज्जो है और ये बड़ी मेहनत से अदारा जो है चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह ताला ये अदारा जो है तरक्की के मनाज़िल तय करेगा। तो इस सिलसिले में जहाँ तक ये आवाज़ जो है सामाईन तक पहुँचे तो मैं ये मुनासिब समझूँगा कि अगर इस कार खैर में दामे दिरमे कदमे सुखने जिस किस्म का भी तामन आप कर सकते हैं तो ये कार खैर है, ये सदका जारिया होगा और बहुत बड़ा सवाब का काम है। ये एक मिली काम है, ये कौम का काम है, ये हमारे एक इस इलाके के लिए बहुत बड़ी खिदमत है। और जैसे कि इस वक्त हमारा जो महकमा तालीम है उनका भी मेन फोकस जो है कि ये गर्ल्स एजुकेशन के बारे में ज़्यादा फोकस है कि भाई अगर एक लड़का तालीम हासिल करता है तो वो फ़र्द वाहिद की तालीम है, और अगर एक तालिबा या गर्ल्स एजुकेशन जो है वो पूरे फैमिली की तालीम है, वो पूरे महल्ले की तालीम है, वो पूरे इलाके की तालीम है और पूरे मुल्क की खिदमत हो सकती है। इसकी अशद ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा जो है ये इखलाकी तालीम जिसे मॉरल वैल्यू कहते हैं, जिसकी दौरे हाज़रा में अशद ज़रूरत है, एथिक्स एजुकेशन जो है उस पर जो है आजकल बहुत जोर दिया जा रहा है। हमारे समाज में फैली हुई जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए मॉरल एजुकेशन की ज़रूरत है, हुब्बे वतनी के लिए मॉरल एजुकेशन की ज़रूरत है, कौम की खिदमत के लिए मॉरल एजुकेशन की ज़रूरत है। तो लिहाजा ये मुनासिब रहेगा कि इस अदारे का जितना भी तावन किया जाए तो वो ये कार सवाब है, तो जितना कोई भी कर सके तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तावन करें तो ये सवाब भी होगा,
ये कार खैर भी होगा और कौम की खिदमत भी होगी और दुनिया व आखिरत में इसका सवाब भी मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्वल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझसे क़ब्ल यहाँ पर अलहाज मोहम्मद अकरम तांतरे साहब रिटायर्ड तहसीलदार जो इस इदारे के ताल्लुक़ से गुफ्तगू फरमा रहे थे, और उसके बाद मोहतरम ZEO रिटायर अब्दुल मजीद साहब, उन्होंने भी इस इदारे के ताल्लुक़ से बड़ी नफीस गुफ्तगू की। इससे कबल मैं इन हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो इस इदारे के जो बानी हैं, जिन्होंने इस इदारे की जो है संग बुनियाद उलमाए किराम के हाथों से रखवाई 2 साल कबल, मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला उनको इस कारी खैर की बेहतर से बेहतर जज़ाए खैर अता फरमाए। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, कम अरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे ने अपनी मिसाल आप जो है बनाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा साल अभी इसका पूरा नहीं होने जा रहा, अभी लगभग 3-4 महीने बाकी हैं, और इन्हीं कम अरसे के अंदर जो है इस इदारे के अंदर इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 85 से 90 तालिबात हैं, 10-12 का स्टाफ है, और उसके बाद जो है इदारे को ज़रूरत पड़ी तीसरी मंजिल मतलब डालने की। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अरसे के अंदर अवामुन नास का हमें बहुत बड़ा ताउन, बहुत बड़ा योगदान मिला, और मैं उन हजरात का समीम कल्ब से मशकूर और ममनून हूँ जिन्होंने दाएं से दिया बाएं को खबर नहीं दी, मगर हम आज उनका आप मीडिया के माध्यम से मतलब शुक्रिया अदा करते हैं अपने चेयरमैन साहब की तरफ से। इस इदारे का खादिम होने के नाते से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ तक ये नाचीज़ पहुँचा, अल्हम्दुलिल्लाह उन सब लोगों ने कद्दो काविश करके इस इदारे में कोई कमी नहीं छोड़ी परवान चढ़ाने में। अब मैं उन्हीं हजरात से गुजारिश करूँगा जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जिन लोगों को इस इदारे से वास्ता है या नहीं है, सब को हम दावत आम दे रहे हैं। यानी जुमेरात के दिन बरोज़ जुमेरात 23 तारीख को इस इदारे जामियतुस सालिहात की तीसरी मंजिल का लेंटर डाला जा रहा है। तमाम हजरात से हम गुजारिश करेंगे, जिस तरीके से आपने इस इदारे को अपने खून से सींचा, दायमे दिरमे नगदी जिनसी देकर, इसी तरीके से आप परसों भी तशरीफ़ लाएं और इस इदारे के अंदर जो है मतलब इसके जो है मुआविन बने। इससे पहले भी आप मुआविन बने हैं, परसों आके सवाब इदारे हासिल करें। बाकी जो हजरात इस इदारे की मुआवनत करना चाहते हैं, आज मीडिया का दौर है, जामियतुस सालिहात का ये अकाउंट नंबर जो है सामने है, लास्ट में 511 है, एसके ब्रिज का नंबर है, ये इस मदरसे का नंबर है। तो सारे हजरात जो है इसमें मुआवनत भी करें, और जिन लोगों ने दिया अल्लाह ताला उनकी भी दुनिया और आखिरत बेहतर करे, और जिन्होंने अभी तक नहीं दिया अल्लाह ताला उनको भी दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। और हम दुआ करते हैं रब्बे करीम की बारगाह में, जिस तरीके से इस इदारे को परवान चढ़ाने में कोई कमी नहीं अल्लाह ताला करे कि इसकी जो ये जामियतुस सालिहात की तालिबात हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3 तहसीलें हैं, तहसील मंडी, तहसील हवेली, तहसील मेहडर। इन्हीं तहसील 3 ही तहसील की बच्चियाँ यहाँ पर जो है ज़ेर तालीम है। माशाअल्लाह हर मकतबा फ़िक्र से वो बच्चियाँ ताल्लुक़ रखती है। माशाअल्लाह यहाँ पर जो है पिछले साल इस इदारे का जो है इफ्तिताह किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का मुकम्मल शोबा है, यानी जिसको दरस निज़ामी कहा जाता है, शोबा नादरा कहा जाता है, शोबा क़िरत कहा जाता है। इंशाअल्लाह वो सारे शोबाजात यहाँ पर जो है, रियाजियात का भी यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बंदोबस्त है। मैं सब हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला आप हजरात को दारैन की सादतों से माला माल फरमाए, और अल्लाह ताला आप हजरात की मुश्किलात को भी आसान कराए, और इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी परवरदिगार आलम तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए। मैं अपने तहसीलदार साहब, ZEO अब्दुल मजीद साहब, हाफिज़ खलील अहमद साहब, मैं इन मेरे भाइयों ने यहाँ पे जो
यहाँ पे जैसे भी यहाँ बताया है मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमें 2 सालों में हम तीसरी मंजिल तक पहुँचे हैं। ये मैं आज के दिन ये आपसे कहूँ कि ये इन सब लोगों का तावन है। ख़ास तौर मेरे छोटे भाई हाफ़िज़ खलील साहब, उन्होंने मेरे से कंधा से कंधा मिलाकर यहाँ पे जो है ख्वाहिशें की हैं, काम किया है। और उसके साथ जितने भी मेरे बरादरी के, कुंबे के, शहर पुंछ के जितने भी लोग हैं, तमाम लोगों ने यहाँ पे बढ़ चढ़ के यहाँ पे तावन किया है। मैं सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बिना जो लोगों के बगैर, बिना सब भाइयों के बगैर अकेला मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ पे सब लोगों ने मिल-जुल के, यहाँ उसमें ठेकेदार लोग हैं, मुलाज़िम हज़रात हैं, अफ़सर हज़रात हैं, जिन्होंने यहाँ पे आकर ये मशवरे दिए कि यहाँ पे आप दीनी पढ़ाई के साथ-साथ जो है दुनियाई की जो पढ़ाई है यहाँ पे, दीनी तो हम पढ़ाते ही हैं, उसके साथ हम दुनियाई पढ़ाई भी जो है बच्चों के ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पे हमारे एक लेवल के बच्चे नहीं हैं, यहाँ कोई 7th क्लास का बच्चा है, 8th का है, कोई फर्स्ट का है, कोई नर्सरी का है। तो उसी हिसाब से हम उनको जो है मायार के मुताबिक जो है दुनियाई पढ़ाई पढ़ाते हैं। और उसमें इंग्लिश का, उर्दू का, मैथ का जितने भी सब्जेक्ट हैं वो उनके लगवाते हैं। उसके बाद जो बाकी टाइम होता है उन, क्योंकि आजकल का जो दौर है डिजिटल, जैसे इंडिया की जैसे हम बोलते हैं, उस हिसाब से हम बच्चों को तैयार करते हैं। और मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि अल्लाह ताला ने मुझे अगर इस काम के लिए यहाँ पे चुना है, ये उसका बड़ा रहम व करम है। और जिन लोगों ने मुझे यहाँ पे आके खड़ा किया है, मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे वक़्तन-फ़वक़्त यहाँ पे सपोर्ट किए, अपने मशवरे दिए, अपना टाइम दिया, अपना वक़्त दिया। मैं सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। और सबकी बात सुन के उस पे जो अच्छी जो एजुकेशन आज के वक्त के हिसाब से, हमें दीन के हिसाब से भी चलते हैं और आज का जो वक्त है उसके हिसाब से भी चलते हैं। और आजकल का जो नया मॉडल ज़माना है, हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को दीन के साथ साथ दुनिया भी दी जाए, ताकि आने वाले डिजिटल इंडिया में कहीं हमारी बच्ची नाकाम ना हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।